Human activities are divided into two parts. Human activities are divided into two parts. One is economic activities, and on the same line, second is non-economic activities. Right? Economic activities and non-economic activities. Further, I also said that we will be focusing more on economic activities. We will focus more on economic activities. Now, this economic activities are also divided or classified into three parts. First is business. Second is job or employment, and third is profession. Right? This is how three business activities are classified. This is how three activities are classified. Right? Economic activities are classified into three parts: business, job, and profession. Further, in the topic of business, what you are going to study? Meaning of business. Second is characters of business. Third is objectives of business. Fourth is types of business risks. And after that, next is causes of business risk. And in this topic, last is classification of business activities. Classification of business activities. See, whatever is written on your screen, that can be considered as your entire chapter. Whatever is written on your screen, that can be considered as an entire chapter. Reason being, I will explain. Wait for a moment. Till today, we have completed this much part. Till today, we have completed this much part. Now, what is your chapter based on? Majority portion of your chapter, more than half of the portion of your chapter is based on this classification of business activities. Classification of business activities. Right. Now, these business activities are classified into three parts. Understand it. These business activities are classified into further three parts.
These business activities are classified into three parts. Which three parts? Then understand first. First is trade. First is trade. Second is commerce. And third is industry. Third is industry. Business activities can be classified into these three parts: trade, commerce, and industry. Business activities can be classified into three parts. Business can be done in any of these three ways. Either by doing trading, business can be done. Either by doing commercial activities, business can be done. Either by establishing industry, business activities can be done. Now, if we talk further, trade is also divided into two parts: internal and external. Trade also is divided into two parts: internal and external. Commerce also includes two things: trade plus auxiliary services. And industries are also classified into three parts: primary, secondary, primary industries, secondary industries, and third is tertiary industries. And here your entire chapter is concluded in one page only. These are the topics of your chapter. These are the topics of your चैप्टर. यहां पर इतने टॉपिक्स है आपके चैप्टर में. सबसे पहला समझ लो, सबसे पहला टॉपिक समझ लो, ह्यूमन एक्टिविटीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है: बिजनेस, जॉब एंड प्रोफेशन. उसमें भी बिजनेस कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, राइट? तो इसके हिसाब से हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले एक्टिविटीज, राइट? ह्यूमन एक्टिविटीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है समझ लेना एक बार. ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है? सबसे पहला है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखे, राइट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है: बिजनेस, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, एंड तीसरा प्रोफेशन. आगे देखे तो बिजनेस एक्टिविटीज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड है. एक है ट्रेड, दूसरा है कॉमर्स, एंड तीसरा है इंडस्ट्रीज. ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज.
ट्रेडिंग की हम आगे बात करें, हम आगे ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग भी दो पार्ट्स में क्लासीफाई है। सबसे पहला है ए, इंटरनल ट्रेड, और दूसरा है बी, इंटरनेशनल ट्रेड। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी सर्विसेज। इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ए है एग्रीकल्चर मतलब के प्राइमरी इंडस्ट्री, बी है एक्चुअल इंडस्ट्रीज मतलब के सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एंड सी है सर्विसेज मतलब के टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर डिजाइन हुआ है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये पूरा बंच है जो आपके चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस किया है, राइट। इसमें भी ये एक्टिविटीज तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। बिजनेस तीन पार्ट्स में, ट्रेड, कॉमर्स, and industries. So this is how your chapter is designed. आपका चैप्टर इस तरीके से बना है। अभी हम आगे क्या डिस्कस करेंगे? अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बिजनेस के बारे में। ओके फाइन, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोफेशन। हम लोगों ने बिजनेस का पूरा कंटेंट डिस्कस कर लिया है एक्सेप्ट इट्स क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोफेशन। इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको पहले, इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन इंट्रोडक्शन मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया तब आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्रोफेशन, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है। व्हाट इज मेंट बाय प्रोफेशन? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, राइट? प्रोफेशन का मतलब होता है बिकमिंग, है बिकमिंग व्हाट? बिकमिंग व्हाट? बिकमिंग व्हाट? बिकमिंग मेंबर। member, becoming what? Becoming member, but of what? Becoming member, but member of what? The member of association है। association किस चीज का association? what kind of association? association of person, समझना। becoming what? Becoming member, becoming
what becoming member पण किस चीज का? एसोसिएशन का। किसके एसोसिएशन का? पर्सन्स के एसोसिएशन का। बट किस तरीके के पर्सन? उस तरीके के पर्सन्स who are having what? Specialized knowledge। ऐसे लोगों का मेंबर, ऐसे एसोसिएशन का ऐसे लोगों के एसोसिएशन का मेंबर बनना जिनके पास स्पेशलाइज स्किल्स हो, नॉलेज हो। और ये स्किल्स या नॉलेज का क्या करने का? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अपने नॉलेज की वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अपने नॉलेज की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करते हैं? फीस के लिए, टू अर्न फीस। तो देखो यहां पे जितने भी क्वेश्चन मार्क्स है, अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं हटा दूं, इफ आई रिमूव ऑल द क्वेश्चन मार्क्स, देन आई विल गेट द डेफिनेशन। I will get the definition of profession। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? बिकमिंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन who are having specialized skills। by becoming the member of association of person who are having specialized skills, knowledge or abilities, and by providing the services of the same, one earn fees। This is considered as the profession। This is considered as the profession, and the person who provides this kind of services, he will be considered as the professional person। The person will be considered as the professional person, and the activity will be considered as the profession। So becoming a member of association of person who are having specialized skills, knowledge, abilities, and by providing the services of the same, one earn fees। This is considered as the profession, and the person who provides this kind of services is known as a professional person। For example, lawyer, for example, lawyer, lawyer। See, अगर हम
हमारी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीजें दिख रही है उसको लॉयर के एग्जांपल के साथ कंपेयर करने के लिए जाए तो सबसे पहले तो एक बात देख लो, लॉयर्स का एक फॉर्मल एसोसिएशन होता है। लॉयर्स जो होते हैं उनका एक फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। लॉयर्स आर हैविंग फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लॉयर्स आर हैविंग फॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बार काउंसिल बोलते हैं। ऑल द लॉयर्स आर दी members of bar council, which is their association of person, right? And all the lawyers are member of this association of person. Now these lawyers are having a specialized knowledge and skills. They are having a specialized knowledge. किस चीज का नॉलेज होता है लॉयर्स में, किस चीज का नॉलेज होता है? दे आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ लॉ, एक्ट, रूल्स, प्रोविजंस एटसेट्रा। और right, and by providing the services based on their knowledge, they provide the services based on the knowledge, and in return lawyer gets fees. Understood? So this means lawyers are considered as the professional person, and the profession which they perform is of advocacy. The same way along with the lawyers, doctors, architects, engineers, teachers, CA, CS, etc. also have the same characters. ये सबके पास भी ये कैरेक्टर्स होते हैं। इसी वजह से जितने भी प्रोफेशनल लोगों का नाम मैंने लिया वो सारे के सारे प्रोफेशनल पर्सन्स बोलते हैं। All these are considered as the professional person, and their character is profession. Clear? So this is considered as the profession. Now based on this, let us understand the characteristics of it. Let me first read out the paragraph of meaning. A person with specialized knowledge, training, professional education renders services, and in return services fees is called profession. जो कोई भी बंदा जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होता है, ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होता है, स्किल्स होती है और इसकी सर्विसेज रेंडर करने के अगेंस्ट में फीस लेता है। A profession has to obtain the membership of
द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। लॉयर, जैसे मैंने बताया कि इफ देयर इज अ लॉयर, he is the member of bar council. If there is any CA, chartered accountant, he is the member of ICAI. If there is any person who is CS, he is the member of ICSI. If there is any doctor, he is the member of association of medical or doctory association. Same way, all the professional persons have their own professional association and they are the member of it. Apart from that, apart from this, they have to obey the established code of conduct. Now sir, this code of conduct means what? Code of conduct का मतलब होता है disciplines. There are certain rules, regulations. There are certain rules and regulations which are decided by this professional association. ये जितने भी professional association है, वो association खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाता है. इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, कल मैंने बात की थी, शायद याद करो. क्या आपने आज तक कभी किसी लॉयर की एडवर्टीजमेंट देखी? आपने कभी देखी कि कोई लॉयर एडवर्टीजमेंट कर रहा है? क्या आपने कभी ऐसा सुना कि हमारे यहां 4 मर्डर किए, जिन्होंने 4 मर्डर किए आज तक, वो हमारे यहाँ आए, केस सॉल्व करके दे देंगे. जिसको डाइवोर्स चाहिए वो सबसे पहले हमसे मिले, इलीगल लैंड एक्वायर करने के लिए हमें मिले. क्या आज तक आपने कभी भी ऐसी एडवर्टीजमेंट देखी? आंसर इज नो. राइट. सो रीजन क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का रीजन है कोड ऑफ कंडक्ट. इसके पीछे का रीजन है कोड ऑफ कंडक्ट. बार काउंसिल ने ऐसे रूल्स डिसाइड किए कि कोई भी लॉयर खुद की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता. हम लॉयर है, वो एक डिग्निफाइड प्रोफेशन के लोग हैं, हमारे बीच अंदरों अंदर कंपटीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो कंपटीशन होगी. राइट. अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो अंदरों अंदर कंपटीशन होगी. इसी वजह से लॉयर का जो एसोसिएशन है बार काउंसिल, वो लॉयर्स को एडवर्टीजमेंट नहीं करने देती. इसी तरीके से सीए और सीएस का भी होता है. सो हर एक प्रोफेशन के खुद के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. राइट. आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, chartered accountant has to have professional qualification of CA and has to become a member of Institute of Chartered Accountants of India. Same way, doctor, lawyer, solicitor, CA are professional persons and professional skills can also be used for employment. अगर यही कोई है, कोई CA है, तो इसको वो CA जॉब के लिए भी यूज कर सकता है. राइट. अगर कोई सीए है, सीए खुद की फर्म खोलेगा तो वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर यही सीए खुद के प्रोफेशनल नॉलेज को किसी कंपनी को सर्व कर रहा है एज एन एम्प्लॉय, तो ही इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज है, वो एज अ जॉब भी कोई दे सकता है. राइट. कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर खुद का क्लिनिक भी चला सकता है, और डॉक्टर किसी की हॉस्पिटल में जाकर जॉब भी कर सकता है. राइट. So this is profession.
नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्विकली, सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहला, अ प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे लॉयर है तो लॉयर को लॉ का नॉलेज होना चाहिए, डॉक्टर है डॉक्टर को मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, सीए है सीए को अकाउंटेंसी और टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, सीएस है तो सीएस को कॉम्प्लायंस का नॉलेज होना चाहिए। ही चार्जेस फीस, जितने भी मैंने नाम दिए वो हर एक खुद की फीस चार्ज करता है, बट हर एक की फीस अलग अलग होती है। स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज फ्रॉम स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आप कोई नॉर्मल फिजिशियन के पास जाते हो तो उसकी फीस कुछ अलग होती है, आप कोई एमडी के पास जाते हो तो उसकी फीस कुछ अलग होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिग्री, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ नॉलेज। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू रेंडर सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या प्रोवाइड होता है? प्रोफेशन में सर्विसेज प्रोवाइड होती है। प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है, मुझे जहां पे भी वो एक्टिविटी शुरू करनी है मैं कर सकता हूं। आई एम फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम एनीवन। अगर मैं जॉब में हूं तो मैं डिपेंडेड हूं, अगर मैं किसी के वहां जॉब करता हूं तो मैं डिपेंडेड हूं, मुझे उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। बट मेरी खुद की ऑफिस है, मैं खुद प्रोफेशनल एक्टिविटी प्रोवाइड करता हूं, तो आई एम इंडिपेंडेंट। मुझे जो ऑफिस चार्ज करनी है चार्ज करूंगा, मुझे जब ऑफिस ओपन करनी है करूंगा, जब ऑफिस बंद करनी है कर दूंगा, राइट। और ये जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है उसका प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। यहां पे कोई फिजिकल चीज प्रोड्यूस नहीं होती, यहां पे सिर्फ प्रोड्यूस होती है तो सर्विसेज और लोगों की नीड सेटिस्फाई होती है। एंड जो भी प्रोफेशनल पर्सन है उसको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ही इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की बात हम लोगों ने यहां पर ऑलरेडी कर दी कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड डिसिप्लिन। एंड लास्ट इज मॉनिटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टेन। पेमेंट या तो फिर रिटर्न बोल सकते हैं, ये सर्टेन नहीं होता, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। जैसे कि मॉनसून सीजन में डिजीज ज्यादा होते हैं तो डॉक्टर्स का पेमेंट कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि फाइलिंग सीजन होती है तो उस फाइलिंग सीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम बढ़ जाता है। डन। So this is the meaning of profession and these are the characteristics of profession. I hope you understood everything. अगर आपको कोई भी डाउट है you can contact me. Thank you and have a nice day.